Hello everyone. Hi, Sandeep Pandit from the Spice Angel. We'll just give हम 1 minute देते हैं सबको to come online and I'll introduce myself. Nice. So, are we live? Yes, we are. Perfect. नमस्कार, मेरा नाम संदीप पंडित है. मैं मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया 2019 में contestant था. And yeah, proud owner of the Spice Angel, my brand. I'm in Melbourne, again being ably assisted and directed by my wife Prahalika over here. और अमूल को बहुत बहुत थैंक यू मुझे फिर से इनवाइट करने के लिए. आई नो हमारे पास थोड़ा ही टाइम है, 30 मिनट्स है, और ये डिश यूजुअली काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है बोलने में. सॉरी, am I audible? In case मैं audible नहीं हूँ, please put your headphones on. It's much better. I can also try to see if let me see if I put my headphones on if it's any better. Am I audible a little better? Sorry, it's not working. Pardon me for that. I'll try to be as loud as possible. मैं bilingual रहने की कोशिश करूँगा. I'll try to be bilingual. Again, I have some folks from Australia who will be joining in, और आप लोग सब इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं. Without further ado, let's start पनीर दो प्याज़ा. दो प्याज़ा एक ऐसी डिश है जो आपने बहुत ज़्यादा खाई होगी रेस्टोरेंट्स में. As the name says, दो प्याज़ा यानी कि two onions. Not just कि हम दो तरीके के अनियन इसमें यूज करते हैं, इसमें हम अनियंस को दो तरीके से पकाते भी हैं. There are two different ways in which you treat both these onions. That is what gives it the flavor. The dish has sorry, do we have an issue? Yeah, little voice issue. Yeah, there is going to be a bit of a volume issue at the beginning. Please have your headphones on. It gets much better. As the video goes on, it gets better. Please have the headphones on. You will be able to listen to me much better. Thank you. We are trying to see if the volume is a bit alright. Just let me know if there is an issue. As I've said, I request you, in case you're not able to hear me, please put the headphones back on. Alright, so to get started with the dish, I have, I'll give you a very quick ingredient checklist. In this dish, हम लोगों को एक पॉट तो डेफिनेटली चाहिए. इसमें we need about 250 grams of paneer. I have cooked some of it before, but how I reached this stage, I will show it to you. You need to have a decent thick bottomed pan, and in that pan, you need to add 2 good spoons of ghee. I'm using the wonderful Amul ghee over here. This is about a tablespoon and a half. Now, some of you might find that extremely rich. Well, this dish is extremely rich, so if you can replace it with oil, but you know it's an entirely different experience. Let us get this heated. इसको गरम कर लेते हैं घी को. So as our ghee heats, I'll just walk you through some of the other ingredients. I've got, in this dish, the major thing is the onions. Rather, the major ingredient are the onions. So I've got these brown onions that I have, जो मैंने dice किए हैं, और red onions जो मैंने slice किए हैं. काफी बार आपके पास शायद दो अलग तरीके के onions ना हो, तो आप दोनों में red ही use कर सकते हैं, जो भी आपको मिले. But you have to chop the onions in 2 different ways. So it has to be diced for the first part, and it has to be sliced for the second part. The interesting thing is, जैसे आप onions को cut करेंगे, उस तरीके से onion का स्वाद आता है. So the way you cut an onion actually makes it taste a little bit different. Alright? तो हमारा घी जो है यहाँ थोड़ा गर्म हो रहा है. We have to let this ghee be hot enough so that the paneer sizzles in it. You also need to have a bowl of water.
एक 300 ml पानी इसमें ले लीजिए. Keep a bowl of water ready. Let me talk about the spices first. I have garam masala here. In Hindi also, please. हिंदी में भी बोलता हूँ, माफ कीजिएगा. मेरे पास गरम मसाला है, कश्मीरी लाल मिर्च यानी कि कश्मीरी रेड चिलीज, धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर. So dry spices में, powdered spices में, these are the ones that we need. Whole spices, once we start using them, I'll tell to you. But and of course salt. So what I'm going to do, मैं अभी around half a teaspoon गरम मसाला, I'm going to be putting it, वो जो पानी हमने लिया था 300 ml, उस 300 ml पानी में हमने half a teaspoon गरम मसाला, about 1 teaspoon कश्मीरी रेड चिली या कश्मीरी लाल मिर्च. मैं थोड़ी देर के लिए घी बंद कर देता हूँ, otherwise it will burn. And 3/4 of a teaspoon, 3/4 चम्मच कोरिएंडर पाउडर. सॉरी. ऑलराइट, तो इसको मिक्स कर देते हैं. आई एम ऑल्सो गोइंग टू ऐड, इस पानी में मैं थोड़ा सा नमक भी डाल देता हूं. I mean, just 3/4 of a teaspoon salt should be good. Now, हमारा जो घी है, जो 1.5 tablespoon मैंने घी लिया था, वो भी काफी गर्म हो गया है. मैंने आंच कम कर दी है, but let me check. Yeah, it's sizzling a bit. On medium heat, medium आंच पे आप ये पनीर, as I've said, the पनीर जो मैं यूज करने वाला हूँ, I have already partially cooked it to cut the cooking time here, but I'll show you what are the steps. So 250 grams of पनीर, ताजी अमूल पनीर आप लीजिए, और उसको ये जो आपने घी लिया है पॉट में, उसमें फ्राई कीजिए. पनीर को ऑलमोस्ट 1 इंच के क्यूब्स में आप कट कर सकते हैं. इंश्योर कीजिए कि वो थिक हो. अगर वो थिक नहीं होंगे तो ये गलने लगेगा. हमें बहुत देर तक इसे तलना नहीं है. वी जस्ट वांट कि एक गोल्डन कलर आ जाए. इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ अ टाइम. काफी बार बहुत ज्यादा छींटे आएंगी, तो जस्ट हैव अ लिड एंड स्टैंड बाय. प्लीज इंश्योर कीजिए दैट यू फ्राई इट ऑन अ धीमी आंच पे. So the heat has to be medium. We're looking at this ऐसे golden color का हम wait कर रहे हैं, and just like flip it around. We have a question. Can we air dry paneer? So Absolutely. But अगर आप air fry करेंगे तो घी का स्वाद नहीं रहेगा. आप एयर फ्राई कीजिए, थोड़ा सा घी पनीर में मिला के उसके बाद एयर फ्राई कीजिए. इट्स पॉसिबल, बट मैं प्रेफर करता हूँ घी में खाना बनाना. मुझे ऐसा लगता है घी में खाना बहुत स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी बनता है. तो आई एम यूजिंग घी हियर. आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं, एयर फ्राई भी कर सकते हैं. प्लीज क्वेश्चन आने दीजिएगा. हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस. अभी आप देखिए, हमारा जो पनीर है ये गोल्डन हो गया है. Unable to see it? yes. Alright. So इस पनीर को अब जो हमने, मैं ये हीट ऑफ कर देता हूँ, जो हमने पानी का बाउल बनाया था, I will put it into that. Just make sure कीजिए that पनीर is golden on all the 4 sides. I just because मैं एक इंडक्शन प्लेट यूज कर रहा हूँ, ये थोड़ा जल्दी पक जाता है इंडक्शन प्लेट में. अगर मैं स्टोव पे कर रहा होता, if I was using a stove, it might have taken a little longer. Now what this does is, a couple of pieces are not really very golden yet, so I'll just wait for them. It gives जो पनीर है उस पे एक परत बन जाती है, उसको एक टेक्सचर मिलता है.
और इस पानी में मसाले होने की वजह से because the water has got spices in it, it'll make sure that the paneer has even coating distribution of spices all across it. So we have a question from Cecilia. Do we have to boil the paneer before using for any recipe? That's a very good point. If you see, अगर आप बहुत सारे restaurants में देखें, ऐसा नहीं होता that they boil it. But ये ट्रेडिशनल कश्मीरी मेथड है. मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ और जो हमारे खाने रहते हैं, इन दैट हम लोग पनीर को डीप फ्राई करके फिर बॉईल करते हैं. उससे क्या होता है, अगर आप इस तरीके का मेथड यूज करेंगे, उससे पनीर सॉफ्ट बनता है एंड द फ्लेवर्स. अगर आप कहीं बाहर पनीर खा रहे हैं तो ऐसा रहता है कि उसके बाहर का सॉस बहुत टेस्टी होता है, बट इट इज नॉट गॉट मच फ्लेवर इनसाइड. इफ यू डू इट लाइक दिस, वेयर यू आर फ्राइंग it a bit and then boiling it in the spices में आप इसको boil करते हैं, then जो भी आप इसके बाद flavor डालेंगे बहुत consistent रहेगा. It will be very consistent. So what I would do now is, if I were to make this dish end to end, I would now boil it, all of this, until this quantity becomes this much. So I just did this before, this is a cooking show after all. I had the liberty of time. So I did this before, and as you can see, I'll just open it. I'll get rid of this one. Are we good? Am I audible? Yes. अगर कोई भी question है, please go ahead, ask me. We're live on Amul's Facebook page. You will also see this on my Instagram page later. Can you just repeat what you put in that water? Red chili powder, coriander. Yes, I'll say that again. So if you see this paneer has got a bit of a texture on the outside. And it's quite moist. I'm not sure if you can see that. The spices go all the way inside. मैंने इसमें 300 ml पानी, half a teaspoon गरम मसाला, 1.5 teaspoon कश्मीरी लाल मिर्च और 1 teaspoon coriander powder पानी में डाला. We fried the paneer in ghee, put it in that water. उसके बाद उसको उबाल के we've almost reduced it to half. So what has happened here is, जो घी है इसमें पनीर का जायका आ गया. It's already got that flavor of paneer in it, and now we are ready to put our whole spices. So we'll use a couple of 2 तेज पत्ता, bay leaves, डाल दीजिए इस पे. Around 1 teaspoon cumin, jeera. This is about half a teaspoon methi dana, fenugreek. We have got 3 to 4 cardamom, elaichi. We've got some cinnamon, दालचीनी और एक स्टार एनीस. स्टार एनीस को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता. अगर किसी को पता चक्रा फूल. चक्रा फूल. थैंक यू रहेगा. सो हाँ, अगर आपको भी पता था प्लीज लिखिए स्टार एनीस को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे पता होना चाहिए था. तो एक स्टार एनीस, चक्रा फूल और दालचीनी, which is cinnamon. Excellent. Now मैं हीट ऑन कर देता हूं. खाना हमेशा धीमी आंच पे पकाना चाहिए या मीडियम आंच पे पकाना चाहिए, वरना बहुत जल्दी जल जाता है. But in English, please always cook on a medium or a low heat, otherwise you run the risk of burning the food. Excellent. Now let's now get on to building the flavor. इसमें अब फ्लेवर डालते हैं. Obviously दो प्याजा है तो प्याज तो डालने ही होंगे, but before हम प्याज ऐड करेंगे, आप थोड़ा सा गर्म है, गलत चॉइस थी ऐसे उठाना. महक बहुत अच्छी आ रही है इसकी. आप देखिए ये जो स्पाइसेस हैं ये सिजल होने लगे हैं घी में, इनकी बहुत अच्छी स्मेल आ रही है. दे आर रियली फ्रेग्रेंट. आई हैव, मेरे पास 5 से 6 लहसुन हैं फाइनली चॉप. गार्लिक 5 to 6 क्लोव्स, अबाउट 2 टेबलस्पून है ये. मैं इस टाइम पे थोड़ा ऑफ कर देता हूँ इसको. So I use half of the garlic now. आधा गार्लिक यूज कर लेते हैं और आधा हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे. Do you
have a kitchen tip for how to grate paneer with long shreds and paneer cube not getting broken? Well, how to I mean, if you want, अगर आप shred करना चाहते हैं in long shreds, the only way is use a good knife. There is no way to shred paneer in a very long shreds without breaking it, unfortunately, because paneer as such उसका nature भी ऐसा, it's a very crumbly produce. However, you know, if the paneer actually, if it comes in very long threads, that means the quality of paneer is not good. So I hope आपकी पनीर कभी long threads में ना हो, हमेशा बारीक और छोटी छोटी कटे. Alright, I've just added garlic to this. I'm bringing it up again. I need a grater. Sorry. And there's a question. I'll just finish this. Yes. First. So I've added ginger, 1 tablespoon of ginger, garlic, chopped garlic in this. मैं हमेशा जिंजर ग्रेट करके डालना पसंद करता हूँ, बिकॉज अगर आप जिंजर छोटा छोटा काटते हैं और वो खाने में मुंह में अगर आपके आता है, इट्स नॉट अ गुड फीलिंग. इसलिए आई प्रेफर एंड आई ऑलवेज एडवाइज दैट जिंजर शुड बी ग्रेटेड. सो मेरे पास यहाँ लगभग दिस इज अबाउट इन 2 inches of ginger. I'm using half of it now, maybe 1/4 of it. About 1 tablespoon जिंजर हमने इसमें डाल दिया. और now let's just, sorry about that, toast it. Sorry, there was a question. Please go ahead. So they're saying paneer hard हो जाती है. I'll just read it for you. Alright. अगर आपकी पनीर हार्ड हो रही है, if the paneer is getting hardened when you are cooking it, there are only 2 reasons. One, either the quality of paneer was not good. If paneer has a lot of, I mean, if it has been sitting around for a very long time, it tends to get hard. Second is it possibly wasn't cooked enough. At that point of time, it gets hardened. One of the ways to take care of that is the method that I have shown you. Fry it a little, boil it in some water and spices, and it usually becomes soft. But if the paneer is hard, that's usually the quality of paneer is not good. Good paneer is always soft. Let's translate it also. ठीक है, अगर इंग्लिश में, हिंदी में, हिंदी, oh sorry, पहले मैं ये प्याज इसमें डाल देता हूँ. मैं शुरुआत कर रहा हूँ डाइस प्याज से. इसकी हम हीट कम कर देते हैं, बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया है. अगर आपका पनीर हार्ड रह रहा है तो वो यूजली क्वालिटी ऑफ पनीर अच्छी नहीं है. अगर पनीर का क्वालिटी अच्छा है तो वो हमेशा सॉफ्ट रहेगा. अगर आप पनीर किसी एसिडिक मीडियम में, मान लीजिए खटास में पका रहे हैं, तो पनीर हार्ड हो जाता है. और वजह है पनीर के हार्ड होने की, अगर ठीक तरह से पकाई न गई हो पनीर. तो जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया, आप इस वीडियो पे फिर से आगे देख सकते हैं. आप पनीर को फ्राई कीजिए, उसके बाद मसाले वाले पानी में डाल के उसे उबाल लीजिए और उसको इतना रिड्यूस कीजिए. उसके बाद जब आप पनीर की डिश बनाएंगे वो हमेशा सॉफ्ट रहेगी. हमने अभी इसमें डाइस अनियन डाला. जो ब्राउन अनियन होता है उसका जो शुगर कंटेंट है वो रेड अनियन से कम रहता है. एंड दो प्याजा में दैट इज व्हाट यू ट्राई टू एक्सट्रैक्ट. आप 2 अलग तरीके के प्याज यूज करते हैं जिनकी मिठास अलग होती है, जिनका फ्लेवर अलग होता है. और जिस तरीके से आप प्याज काटते हैं उससे भी प्याज के स्वाद में बहुत असर पड़ता है. अभी आप देखेंगे ये जो पहला प्याज है, जो ब्राउन अनियन है, इसको हमने डायरेक्टली घी पे डाला. और अभी मैं इसमें अराउंड 1/4 ऑफ अ टीस्पून सॉल्ट डालता हूँ. हम लोग ऑलरेडी इस पनीर में नमक डाल चुके हैं, सो आई एम गोइंग टू बी वेरी कंजर्वेटिव इन माय यूज ऑफ सॉल्ट. मैं बड़े ही इत्मीनान से धीरे से नमक इसमें डालूंगा. नमक किसी भी डिश में आप स्टेजेस में डालिए. नमक एक साथ नहीं डाला जाता डिश में. अगर आप ऐसा करेंगे नमक कम ज्यादा हो जाएगा और चीज का स्वाद भी नहीं रहता. So it's always good to salt your dish in stages and not all at once. हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारे प्याज हमने यहाँ तले हैं ये थोड़ा ब्राउन हो जाए. गोल्डन ब्राउन मैं चाहता हूँ ये हो. और उसके बाद हम इसमें पनीर डालेंगे.
इंडक्शन पे पकाने का सबसे बड़ा या सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि इंडक्शन पे हमेशा ही खाना बहुत तेज पक जाता है और बहुत बार मुझे इस बात से बहुत दिक्कत होने लगती है। चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास 30 ही मिनट है तो और ये डिश बनानी बहुत ज़रूरी है। ग्रेट। अगर आपके और कोई सवाल है प्लीज कीजिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो प्याज हैं हल्के गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। नमक डालने से वो प्रोसेस और फास्ट हो जाता है। इस टाइम पर मेरे पास करीब 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी है। इसका 1/4 हिस्सा, 1/4 ऑफ इट, आई विल जस्ट पुट इट नाउ। स्मेलिंग वंडरफुल। तो हम वेट कर रहे हैं कि ये प्याज कब थोड़े से ब्राउन हो और वो जो स्वाद रहता है वो प्याज का वो एक प्याज है और उसके बाद जब हम इसमें दूसरा प्याज डालेंगे वो उतना नहीं तला जाएगा तो वो दूसरा प्याज का स्वाद होता है। इसीलिए 2 प्याजा, 2 अनियंस, नॉट जस्ट कि इसमें 2 तरीके के अनियन डाले गए हैं बट ऑल्सो उन दोनों अनियंस को या दोनों प्याजों को अलग तरीके से पकाया गया है या ट्रीट किया गया है। So, have you put methi in it? बिल्कुल, मैंने जस्ट कुछ देर पहले इसमें 1/4 टेबल स्पून, 1/4 टेबल स्पून कसूरी मेथी डाली। ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो जरूरी नहीं है आप डालें, बट उसका स्वाद 2 प्याजों में बहुत अच्छा आता है। मेरा यहाँ ये जो प्याज रखा हुआ है ये आप देखिए ये गोल्डन हो गया है। अगर आप चाहें, इफ यू वांट यू कैन टेक इट फर्दर, आप इसको और थोड़ा तल सकते हैं बट जैसे ही प्याज घी छोड़ने लगे इट्स फ्राइड और मुझे ये ब्राउन कलर काफी पसंद है सो आई विल जस्ट गो बाय विद इट। Can you show the pan towards the camera? Definitely. Is it visible? Yes. तो आप देखिए प्याज जो है गोल्डन हो गया है। आप चाहें तो इसको और ज्यादा देर तक पका सकते हैं और ज्यादा देर तक ले जा सकते हैं, डार्क ब्राउन कर सकते हैं और कैरमलाइज कर सकते हैं इसको। पर मुझे लगता है कि अभी के लिए ये इतना काफी है। नाउ अब मैं इसमें पनीर डालूंगा। मैं सिर्फ पनीर के टुकड़े इसमें डालूंगा। जो ये पनीर का ब्रॉथ है या जो रसा है उसको मैं अभी नहीं डालूंगा। सो आई जस्ट ऐड दीज पीसेस ऑफ पनीर। फ्रेंड्स, इसके बाद अगर आप चाहें आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके Sandeep_cooks वहां जाके मैं इस रेसिपी को लिख के डालने वाला हूं, तो प्लीज वहां पे जाके मुझे फॉलो कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है द स्पाइस एंजल, प्लीज मुझे वहां फॉलो कीजिए, वहां बहुत सारी रेसिपीज हैं। ये पनीर इज गोइंग इनटू दिस। हमने जो ये ग्रेवी रखी हुई है, we'll save it because that's flavor, बहुत बढ़िया फ्लेवर है। This will make our sauce, इससे हमारा सॉस या हमारा जो 2 प्याजा का बेसिकली रसा है वो बनेगा। ना हीट फिर से ऑन कीजिए और जो पनीर है उसको प्याज के साथ अच्छे से मिला दीजिए, लाइक दैट। आपको दिख रहा है? अगर आपके और कोई भी सवाल है, एनी क्वेश्चंस, प्लीज गो अहेड। नाउ इसमें हम अब दूसरा वाला प्याज डालेंगे। इससे ही जो प्याज के 2 अलग जायके हैं निखर के आते हैं। तो जो पहला वाला प्याज है वो अच्छे से भुन गया है, इट्स गॉट कैरमलाइज, ब्राउन हुआ है वो, एंड उसका टेक्सचर अलग है, उसका जो जिस तरीके का उसका माउथ फील होगा वो अलग होगा। और ये वाला जो रेड अनियन है ये उतना नहीं तला जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसी तरीके से हम प्याज के 2 अलग फ्लेवर्स लाते हैं इस डिश में, एंड 2 प्याजा कहलाता है। तो इस डिश के लिए मैंने हाफ कप अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ ब्राउन अनियंस और अनदर 100 ग्राम्स ऑफ रेड अनियंस लिए हैं।
100 ग्राम भूरे प्याज जिनको बारीक काटा था छोटा छोटा, और 100 ग्राम लाल प्याज जिनको मैंने स्लाइस किया है लंबा और एकदम पतला। इस स्टेज पे आप जो हैं और नमक डालिए। तो हमने पहले सॉल्ट किया था जिस पानी में, जिस लिक्विड में हमने पनीर को बॉईल किया उसमें नमक डाला था। उसके बाद जब हमने ब्राउन अनियंस डाले हमने तब उस पर नमक डाला। अब और एकदम थोड़ा सा 1/4 टीस्पून नमक मैं और डाल देता हूँ। हमारे पास जो गार्लिक बचा हुआ था अनदर टेबलस्पून, मैं उसे भी डाल देता हूँ। यहाँ पे एक और दिक्कत वेस्ट में फायर अलार्म्स की है, और अगर मेरा फायर अलार्म बच गया प्लीज डरिएगा नहीं, हमें 2 मिनट लगेंगे फायर अलार्म बंद करने में। तो अगर मैंने पीछे एग्जॉस्ट ऑन कर दिया तो आप कुछ भी नहीं सुन पाएंगे। इस टाइम पे आपको जो ये प्याज हैं इनको बस हल्का सा ट्रांसलूसेंट होना है। they don't really have to get fried, उनको एकदम तलने की जरूरत नहीं है, बट वो अगर हल्का सा अपना कलर छोड़ दे या हल्के से एकदम ओपेक हो जाए, हल्का सा सफेदी जो जैसी आ जाती है, उतना हमारे लिए बहुत है। कोई सवाल प्लीज गो अहेड। मैंने पिछली बार आपको लाछा पराठा बनाना सिखाया था। अगर आप पनीर दो प्याजा लाछा पराठा में डाल के एक बहुत ही बेहतरीन रोल बना सकते हैं। ये डिश चावल के साथ घी राइस बना लीजिए आप, इसके साथ अच्छा सा कोई पराठा बना लीजिए, उसके साथ बहुत बढ़िया है। या तो फिर ऐसे ही खा लीजिए, मुझे तो ऐसे ही पसंद है। क्वेश्चन। So we have one time उन्होंने आपका लाछा पराठा ट्राई किया है, हाँ जी, and they liked it, really liked it. थैंक यू सो मच। आपने लाछा पराठा ट्राई किया, वो वीडियो भी अमूल के साथ हैं, और अमूल का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे फिर से बुलाने के लिए। देखिए आप ये जो प्याज हैं ये अब हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। आपको इस स्टेज पे प्याज को बहुत ज्यादा तलना नहीं है, बस जरा सा सॉफ्ट हो जाए, प्याज की मिठास रहनी चाहिए, और जो प्याज का भुना हुआ पन है, जो प्याज का भुना हुआ स्वाद है, वो हमें ब्राउन अनियन से एनीवे आ ही जाएगा। तो अभी मैं हीट काट देता हूँ, क्योंकि अब मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस डालने वाला हूँ, और बचा हुआ हमारा जो कसूरी मेथी है वो डालने वाला हूँ। जिंजर या अदरक हम इसमें एंड पे डालेंगे। तो शुरू करते हैं गरम मसाले के साथ। ये मेरा खुद का गरम मसाला है, बहुत जल्द मैं इसकी ये अवेलेबल करूंगा, आप ले सकेंगे। बेस्ट गरम मसाले वो हैं जो आप घर पे बनाएं, तो आपकी जो भी रेसिपी है वो डालिए। अगर आपके गरम मसाले में इफ योर गरम मसाला हैज कोरिएंडर इन इट, तो प्लीज कोरिएंडर इस रेसिपी में मत डालिएगा, कॉम्पेंसेट हो जाता है। मेरे गरम मसाले में कोरिएंडर या लाल मिर्च नहीं है, इसीलिए मैं वो अलग से डालता हूँ। तो 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 बड़े टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2.5 टीस्पून। मुझे इसका रंग बहुत पसंद है। कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती, ये बहुत इसका कलर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कलर, बट इट्स नॉट स्पाइसी एट ऑल। और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1.5 tablespoon, around 1 tablespoon of kasuri methi remains. So I'll put almost all of it now. I'll keep a little bit for right at the end, around 1 teaspoon के करीब, एकदम अंत में जब सब बन जाए तब डाल देंगे। जब आप मसाले स्टेजेस में डालते हैं उससे भी स्वाद बहुत निखरता है, कॉम्प्लेक्सिटी आती है डिश में, बहुत बढ़िया हो जाता है उसका स्वाद। तो एक ही साथ मसाले सब जगह मत डाला करें आप,
गार्लिक जो लहसुन हो गया यानी कि गार्लिक और जिंजर, इसे अगर आप स्टेजेस में यूज करें तो इसका स्वाद और ज्यादा निकल के आता है एंड यू विल एंजॉय द फाइनल प्रोडक्ट। कैन यू सी द कलर? तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये कितना कितना अच्छा टेस्ट करेगा। अभी द ब्रॉथ दैट वी हैड ये करीब 70 ml होगा। तो 300 ml पानी को हमने ऑलमोस्ट 70 ml कर दिया। अ लॉट ऑफ लिक्विड वुड बी, जो पनीर है वो भी सोख लेगा, पर इतना कम आपको करना है। हाउएवर इस डिश के लिए हमें और थोड़ा लिक्विड चाहिए होगा, सो आई विल ऐड सम मोर वाटर। तो पहले मैं ये लिक्विड इसमें डाल देता हूं और हीट बढ़ा देता हूं। आई जस्ट गेट सम वाटर। मेरे पास है तो 200 ml पानी, पर मैं सिर्फ 100 ml ही डालूंगा और वो मैं इस बर्तन में ही डालता हूं, सो दैट वी यूज ऑल ऑफ इट। आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी ऑफ, मैं पनीर का जितना भी स्वाद है वो खोना नहीं चाहता। ये जो डिश है, ये जो दो प्याजा डिश है, इसमें बहुत ज्यादा ग्रेवी नहीं होती। द ग्रेवी इज वेरी थिक। ये वाला सॉस नॉन वेजिटेरियन फूड के साथ भी बनता है, उसमें कोलाजन रहता है तो वो थिक हो जाता है। बट पनीर के साथ आपको इसे थिकन करना पड़ेगा, यानी कि आपको इसको अच्छे से उबालना है और रिड्यूस करना है। और क्योंकि हम पनीर पहले ही उबाल चुके हैं, आपको बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पनीर पका हुआ है। अब बस जो प्याज का स्वाद है वो पनीर में अंदर जाना है। तो मैं इसको थोड़ी सी धीमी आंच कर देता हूं। Quite a lot of fans saying thanks for your kitchen tips. माई प्लेजर। पकाने का असली स्वाद टिप्स में है। अगर पकाते हुए आपको टिप्स नहीं दी तो फिर क्या दिए? So, and इसको थोड़ी देर के लिए दम पे पकाइए, सो दैट जो हमने इसमें बहुत अच्छे मसाले डाले हैं वो उसके अंदर चले जाएं। तब तक क्वेश्चंस प्लीज। we don't use tomatoes at all. There are no tomatoes in this dish. अगर आप इस डिश में टमाटर डालेंगे तो इस डिश में टमाटर प्याज का एज काट देगा। प्याज की जो मिठास है वो बरकरार रहनी चाहिए। दो प्याजा is about the sweetness of onions and the it's not a very sour dish. इसमें खटास नहीं होती, तो टमाटर अवॉइड कीजिए। टमाटर इसमें डालना जरूरी नहीं है। मैं अभी इसमें थोड़ी सी जिंजर, अदरक, जैसा कि मैंने आपको कहा था, अदरक हमेशा ग्रेट करके डालनी चाहिए। You should always grate in the ginger. Now that allows the fibers, जो उसके रेशे हैं, बहुत बारीक कटते हैं और जायका खराब नहीं होता। बहुत बढ़िया, अच्छी स्मेल आ रही है। रहेगा क्या कहेंगी आप? आपको अच्छी स्मेल आ रही है नहीं आ रही? बहुत, बस प्लेट लगने की देर है। जो हमने कसूरी मेथी रखी थी, मैं टाइम भी देख रहा हूँ, मुझे पता है मेरे पास कुछ ही मिनट रहते हैं। कसूरी मेथी बची हुई इस पे डाल दीजिए और मैं आपको इसको ऐसे एकदम पास से दिखाऊंगा। अभी ये पनीर बहुत ही अच्छा दिख रहा है। जस्ट क्लियर दिस अ बिट। जब तक इसमें घी नहीं जाएगा मेरी आत्मा तृप्त नहीं होगी, तो एक थोड़ा सा चम्मच घी और डाल देते हैं। घी से स्वाद आता है और अमूल घी से तो और ज्यादा स्वाद आता है। आप कलर देख रहे हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं इट्स स्टार्टेड, जो घी है, जो तेल है, बाहर आ रहा है, मतलब ये डिश रेडी है। ये बहुत ही ज्यादा रिच डिश है, यानी कि इस डिश को खाने के बाद आपको ऐसा बहुत भरा भरा लगेगा। दैट्स अबाउट इट।
ये डिश हो गई, हम इसे जल्दी से प्लेट कर देते हैं। बहुत बढ़िया। एक प्लेट में पावर ऑफ करके मैं आपको ये डिश प्लेट करके कैसी दिखेगी वो दिखा देता हूँ। इसकी ग्रेवी बहुत थिक रहती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं बहुत ही थिक ग्रेवी यहाँ से अपने पॉट से उठा रहा हूँ। इट हैज एन इनक्रेडिबली रिच थिक सॉस। इट्स ग्रेट, एज आई टोल्ड यू, इन अ फ्रैंकी। बहुत सारे रैप्स इस नाम से होते हैं, दो प्याजा सॉस। एट द एंड सर्व करने से जस्ट पहले थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर डाल दीजिए। एंड तो वी हैव क्वेश्चन फ्रॉम रिंकू सिंघानिया। वो पूछ रही हैं हाँ जी, जी। क्या वाटर के बदले हम लोग मिल्क यूज कर सकते हैं? मिल्क आप यूज कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा रिच हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप पनीर उबालेंगे आप देखेंगे ऑलमोस्ट दूध ही छोड़ा। पनीर अगर बहुत अच्छा हो तो वो दूधिया रंग ही बना देता है पानी का। और मिल्क डालने से या दूध डालने से आपको इतना गहरा रंग नहीं आएगा कश्मीरी लाल मिर्च का, तो दूध अवॉइड कीजिए। आई थिंक वी आर डन। थैंक यू सो मच आप सबका आने के लिए। ये है फाइनल डिश। मैं कुछ देर में इस डिश का डिस्क्रिप्शन अपने मेरे फेसबुक पेज पे अमूल को भी मैं भेजूंगा। इसकी पूरी रेसिपी आपको मेरे इंस्टाग्राम पे चैनल पे मिल जाएगी। एंड हाँ, मेरी बाकी रेसिपीज देखने के लिए प्लीज मेरे यूट्यूब पे यानी कि द स्पाइस एंजल और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए। हैव एन इनक्रेडिबल इवनिंग। थैंक यू सो मच। गुड नाइट आप सबको।